So good morning class. Today we'll continue with exercise 9.3 question number 24. Just see the question from the book. Show that the ratio of the sum of first n terms of a GP to the sum of terms from n plus 1 to 2n term is 1 upon r. So what we have to prove is, just see the sum of n terms up to 2n terms. If I write sum of 2n terms कितना होगा? A plus AR plus AR square, है ना? This is a GP, no? So sum of 2n terms will be A plus AR square plus and so on AR cube up to AR to the power of n minus 1, then AR to the power of n, AR to the power of n plus 1 up to AR to the power of 2n minus 1. Yeah. S2n means sum of 2n terms. S2n, just see S2n मतलब sum of 2n terms. 2n terms मतलब क्या होंगे? Just see पहली टर्म A है, अब यहाँ तक तो n terms हो गई. अगर मैं ये लूँ यहाँ तक क्या हो गई? Sum of n terms. Now from here this term will be what? n plus 1th term. ये वाली टर्म कौन सी होगी? This will be what? n plus 1th term. AR to the power of n क्या होगा? ये हो जाएगी आपकी n plus 1th term. और ये हो गई n plus 1th के बाद वाली, और ये हो गई 2nth टर्म. 2nth टर्म क्या होगी? AR to the power of 2n minus 1. Now just see according to the question what they are saying. According to the question they are saying ratio of sum of first n terms. Ratio of sum of first n terms. यहाँ तक का first n terms का सम क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक. तो हम क्या लिख सकते हैं? A plus AR square up to AR to the power of n minus 1. Ratio बोला है तो divided by, next is the sum of terms from n plus 1 to 2n. तो n plus 1th term से ये last term तक का sum क्या होगा? AR to the power of n plus AR to the power of n plus 1 plus AR to the power of n plus 2 up to AR to the power of 2n minus 1. ये बोला है अपन को प्रूव करना है इस 1 upon R to the power. ये according to the question हमें दिया हुआ नहीं है, ये प्रूव करना है. To prove this is, we have to prove that the sum of, we have to prove this, that the sum of n terms, sum of n terms to the ratio of the sum starting from n plus 1th term to 2nth term is equal to 1 upon R by Rn. तो हमें पता है ये S2n है. अब मैं इस इक्वेशन से क्या निकाल सकती हूँ? इस इक्वेशन से मैं क्या बोल सकती हूँ? S2n is equal to Sn. ये क्या है? ये क्या है? ये Sn है ना? Sum of n terms, sum of n terms है, प्लस यहाँ तक आपका sum of n terms है, प्लस अपन मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे ये AR to the power of 2n minus 1, यही लिख देती हूँ AR to the power of 2n minus 1. Sn प्लस क्या हो जाएगा? AR to the power of n plus AR to the power of n plus 1 up to AR to the power of 2n minus 1. देख सकते हैं अपन या नहीं? S2n will be equal to Sn plus this thing. लिख सकते हैं ना अपन? ये टोटल S2n का सम था which is equal to यहाँ से यहाँ तक का आपका हो गया Sn sum of n terms plus the rest of the terms. अब आप देखो ये वाला क्या है? ये क्या है? Sn ही तो है. Numerator, what is numerator? Sn. So what we can write? Sn divided by, now what is this? ये वाला है सम. ये सम को हम क्या लिख सकते हैं? S2n minus Sn. Sn को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? S2n, it will be S2n minus Sn is equal to 1 upon R to the power of n. Actually this we have to prove. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, ये आप कहीं लिख लो because I have to rub it. ये प्रूफ करना है तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? हमें पता है सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ n 2n टर्म्स क्या होता है, ये तो हमें पता है, फॉर्मूले पता है ना. तो here we can do some part there. Yeah. ये देखो Sn क्या है? सम ऑफ n टर्म्स. सम ऑफ n टर्म्स को हम कैसे लिख सकते हैं? n, अगर ये एक GP है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? A है और कॉमन रेशियो क्या है? R है, तो R to the power of n minus 1 upon R minus 1 लिख सकते हैं इसको. Sn को, Sn की जगह मैंने लिख दिया A R to the power of n minus 1 upon R minus 1. Let R be greater than 1. We don't know what it is.
हम मान लेते हैं, ठीक। डिवाइडेड बाय रेशियो क्या है, S2n माइनस Sn। S2n क्या होगा, r की जगह r टू द पावर ऑफ n की जगह हम क्या लिखते हैं, r टू द पावर ऑफ 2n। तो क्या हो जाएगा, a r टू द पावर ऑफ 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 माइनस Sn तो यही वैल्यू है सेम, a r टू द पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अभी हम LHS ही लेके चल रहे हैं, हमें ये RHS तो लेके आना है ना, हम LHS से ही चल रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट सी, अब हम क्या ले सकते हैं इसमें से, डिनोमिनेटर सेम है, क्लियर है, तो हम सिर्फ सबट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो इधर स्पेस इज नॉट देयर, आई एम रबिंग द अपर पार्ट so that will be clearly visible to you, है ना। अब देखो इधर यहाँ से अपन ये आ गया अपना, अब ये देखो अब a r टू द पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये तो आपका न्यूमरेटर हो गया, ये न्यूमरेटर अपन ने लिख लिया। अब डिनोमिनेटर में देखो डिनोमिनेटर सेम है r माइनस 1, तो इनको हम डायरेक्ट सबट्रैक्ट कर सकते हैं, तो क्या हो गया, a r टू द पावर ऑफ 2n माइनस 1 माइनस a r टू द पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। अब ये देखो ये r माइनस 1 से कैंसिल हुआ, क्या बचा हमारे पास, a r टू द पावर ऑफ n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब ये दोनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, वी कैन टेक a कॉमन, वी हैव टेकन a कॉमन, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद r टू द पावर ऑफ 2n माइनस 1 माइनस r टू द पावर ऑफ n प्लस 1, ये माइनस यहाँ आया ना, माइनस r टू द पावर ऑफ n माइनस इंटू माइनस प्लस 1, क्लियर, is that clear? Now just see minus 1 plus 1 cancel out, this will be equal to a r to the power of n minus 1 upon a r to the power of 2n minus r to the power of n, clear है, this much is clear, a will get cancelled with a, what we are left with, r to the power of n minus 1 upon, now from these two terms r to the power of 2n minus r to the power of n, what we can take common, we can take common r to the power of n, r to the power of n we have taken common, so what we are left with here, r to the power of n, देखो r to the power of n multiplied by r to the power of n क्या होगा, r to the power of 2n, बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1 अपॉन r to the power of n which is equal to what, RHS, यही तो हमें प्रूफ करना था, this only we wanted to prove 1 upon r to the power of n, clear, is that clear? Then come to question number, this was your question 24, now we'll start with question number 25. So what is your question 25, let's see from the book. Question number 25 is, if A, B, C, D are in GP, show that if A, B, C, D are in GP, show that they are saying A, B, C, D are in GP. They are saying show that A square plus B square plus C square multiplied by B square plus C square plus D square is equal to AB plus BC plus CD होल स्क्वायर। अब वो क्या बोल रहे हैं, ABCD किस में है, एक GP में है, अगर ABCD GP में है तो हम क्या ले सकते हैं, A इज इक्वल टू, A को हमने A मान लिया, B क्या हो जाएगा AR, C क्या हो जाएगा AR स्क्वायर एंड D क्या हो जाएगा AR क्यूब, क्लियर, ABCD की ये वैल्यू है हो गई, हमने मान लिया, क्योंकि अगर इफ दे आर इन AP that means sorry GP, if they are in GP these will be the values of ABCD, clear. Now only what you have to do, LHS में LHS बता देती हूँ, RHS खुद से कर लेना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डाल दो वैल्यू, a स्क्वायर क्या है a स्क्वायर होगी, b स्क्वायर क्या है प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर, c स्क्वायर क्या है a स्क्वायर r का स्क्वायर r टू द पावर ऑफ 4, हो गया ना, क्लियर है या नहीं, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रही हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
ए स्क्वायर इज व्हाट द फर्स्ट टर्म, ए को हमने ए ही माना है, ठीक है, तो ए स्क्वायर हो गया। बी को हमने लिया ए आर मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर। सी स्क्वायर को हमने क्या लिया है, ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर आर टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू ले लो, ए स्क्वायर अगेन आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर आर टू द पावर ऑफ 4 प्लस बी स्क्वायर इज व्हाट ए स्क्वायर आर टू द पावर ऑफ 3 टू द 6। ये आपका हो गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। अब क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी हम ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, जस्ट सी, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया ए स्क्वायर, तो क्या बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर ऑफ 4, और यहाँ से भी ले लिया मैंने ए स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा ए स्क्वायर आर स्क्वायर ले लो इधर से कॉमन, तो क्या बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ गया आपका कॉमन, क्या लेना है, ये तो सारा मल्टीप्लिकेशन में, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया, ए टू द पावर ऑफ 4 आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर ऑफ 4 होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन है, आई इवन वाज डूइंग एडिशन, एडिशन नहीं है ये, मल्टीप्लिकेशन है, तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर से, ए टू द पावर ऑफ 4 आर स्क्वायर का आर स्क्वायर से, sorry, r square into 1 will be r square only, and then this term is repeating twice, so I have done square. This is your LHS. Same way can you find the RHS, है ना, आप a b की वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू a, b की वैल्यू a, when you will put this value and square it, what you will get the same thing. So LHS will be equal to RHS. It is very simple, that's why you can do now rest of the part you can do, just you have to put the value of a b b c c d and then square it. पता है ना, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है ना, नहीं है तो रिवाइज करना। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 26, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81। मैंने ज्योमेट्रिक मीन बताया था आपको क्या होता है, जैसे अर्थमेटिक मीन बताया था, अर्थमेटिक मीन में अगर अपन डी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, अगेन आई विल टेल यू। when we are talking about, here I'm writing, when we are talking about AP, है ना, अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं, तो हम D की वैल्यू क्या होती थी, याद है किसी को, याद है D इज इक्वल टू क्या होता था, yes anyone, what is the value when we are talking about arithmetic mean, the value of D is what, किसी को याद नहीं है, anyone, yes I want answers from your side, किसको याद है, यस क्लास, किसी को भी याद नहीं है। When we are talking about arithmetic mean, हमारा between a and b, तो हम क्या लेते थे, d is equal to b minus a upon n plus 1, अगर हमें इसके बीच में n arithmetic mean इंसर्ट करना है। अब जब हम GM की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे हैं, between a and b, ठीक है, जब हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं तो r की वैल्यू क्या होती है, r is equal to b upon a होल टू द पावर ऑफ 1 upon n plus 1। इसमें भी हम n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, हमें कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, n, तो r की वैल्यू क्या होगी, b upon a होल टू द पावर ऑफ 1 upon n plus 1। अब ये ध्यान रखना है 1 upon n plus 1 है, ये a और b के बीच में हमें n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या होगी, कॉमन रेशियो क्या होगा, b upon a होल टू द पावर ऑफ 1 upon n plus 1, ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस ओनली। क्वेश्चन नंबर 26 is they are saying between 3 and 81, between 3 and 81 we have to insert two numbers, we have to insert two numbers so that it will be a GP, है ना, so that the resulting sequence is a GP, clear। तो हमने मान लिया ये A1 A2 है, हमने मान लिया ये GP है, तो क्या हो गया, टू नंबर्स मींस A1 ये मान लो अपना, G1 है, ये G2 है, क्लियर। दो ज्योमेट्रिक मीन्स अपन इंसर्ट कर रहे हैं इसमें, तो G1 इसमें R की वैल्यू क्या होगी, B upon A होल टू द पावर ऑफ 1 upon n plus 1,
Now what is b here? B is 81 and a is 3. So 81 upon 3 whole to the power of 1 upon n plus 1. N is what? 2. 2 geometric means we have to insert. So 1 upon n plus 1 is 1 upon 2 plus 1. That is, again I'm writing 3 directly. So 3, 2 is 6, 21, 27 to the power of 1 by 3, that is equal to 3. है ना? तो अपना r की वैल्यू क्या आ गई? 3. अब अगर आपको r की वैल्यू पता है, a पता है, तो पहला ज्योमेट्रिक मीन g1 will be equal to what? ar, which is equal to 3 into 3 9, and g2 will be equal to ar square, which is equal to 9 3 is 27. तो ज्योमेट्रिक ये मीन आ गए आपके, और जीपी क्या हो गई? 3 9 27 81. क्लियर? Then come to question number 27. Find the value of n so that a to the power of n plus 1 upon, ये same question अपन ने किया था. If you want you can try it out, otherwise I will do it. You want to try it? Same अपन ने AP में किया था. We have done the same question in AP. Please try it out. If you won't be able to, then we will do it. Just see again, I am giving you the hint. Find the value of n. They are asking you to find the value of n such that a to the power of n plus 1 plus b to the power of n plus 1 upon a to the power of n plus b to the power of n may be a geometric mean between a. मैं एक इक्वेशन बता देती हूँ, उसके बाद आपको जस्ट उसको सॉल्व करना है. Solution part you can do it by yourself. Yeah. So this is your question number 27. What they are saying, a to the power of n plus 1 plus b to the power of n plus 1 upon a to the power of n plus b to the power of n is equal to, they are saying this is equal to the geometric mean between a and b. तो geometric mean between a and b क्या होगा? ab to the power of half. हम लेते हैं ना geometric mean क्या होता है? I've told you earlier, geometric mean between the numbers a and b is what? a b whole root. यही होता है ना. सिंपल है. अगर नहीं आता, जैसे c एक नंबर है तो हम क्या ले सकते हैं? c अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन c. सो ये एक ज्योमेट्रिक मीन अपन मान लेते हैं इन दोनों के बीच में. तो c स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ab. सो c इज इक्वल टू व्हाट? रूट ab. ठीक है, पहले भी बताया था मैंने आपको. तो ये क्या है? रूट ab लिखो या फिर ab टू द पावर ऑफ हाफ लिखो. बस अब इस इक्वेशन को वी हैव टू सॉल्व. दिस इज गिवन. दे हैव सेड कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू the geometric between the numbers a and b. Now find the value of n. You have to find the value of n. तो अब ये इक्वेशन है, इक्वेशन को अपन को क्या करना है? जैसे एपी में सॉल्व किया था, सॉल्व करना है. सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी. Try it out. If you won't be able to, you can ask me anytime. Okay? Then come to question number 28. And if you want it right now, I can do it right now only. Yes, you can speak up, you can unmute yourself and speak. If you want to ask, you can ask it right now only. Okay, clear? So question number 28 is the sum of two numbers is 6 times their geometric mean. What they are saying, the sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Agar main let the two numbers be a and b, let the two numbers be a and b. If the two numbers are a and b, what is given according to the question? Sum of two numbers, sum of these two numbers is equal to 6 times their geometric mean. 6 times root over of ab. Geometric mean between ab क्या होता है? अभी बताया था, root ab. तो a plus b is equal to, ये तो पहली इक्वेशन हो गई. Show that the numbers are in the ratio. Now they are saying हमें क्या निकालना है? The numbers are in the ratio given. ठीक है, हमें शो करना है. वो बुक में से देख लेना क्या शो करना है. ठीक है, नंबर्स इन द रेशियो मीन a:b का जो रेशियो है वो अपन को दे रखा है, वो हमें प्रूव करना है कि उसके बराबर है. तो हम ये इस टाइप की इक्वेशन यू हैव डन इन 10th क्लास. इफ यू रिमेंबर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स व्हेन यू यूज्ड टू डू. सो a plus b, तो इसको अपन स्क्वायर कर दो. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, squaring both the sides, what you get? A square plus b square plus 2ab is equal to 6 times ab, है ना? सॉरी 36 टाइम्स ab. 6 का स्क्वायर होगा ना, ये इसको मैंने स्क्वायर किया, इसको भी स्क्वायर किया. 6 का स्क्वायर हुआ 36, रूट ab का स्क्वायर हुआ ab, रूट हट गया. ठीक है, अब इसको अपन इधर ले आते हैं.
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 36 ए बी माइनस 2 ए बी विल बी 34 ए बी। ये आपकी होगी पहली इक्वेशन। क्लियर? अब आप ले लो a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होगा a माइनस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? क्यों मैं ये कर रही हूँ? बिकॉज वी वांट द नंबर्स a एंड b। a प्लस बी हमें पता है, अगर हमें a माइनस बी पता चल जाए तो हम कर सकते हैं इजीली सॉल्व a और b की वैल्यू, है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम यहाँ से पुट कर देंगे 34ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज व्हाट 34ab, 34ab minus 2ab that is equal to 32ab. So we are having a minus b whole square is equal to 32ab, है ना, and a plus b is this. तो अब a minus b कितना हो जाएगा? a minus b will be equal to root 32 ab, root over of ab, root 32 times root ab, हमने स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर हटा दिया क्या हो जाएगा? a minus b की वैल्यू आ जाएगी, इधर इधर कर लेते हैं, वेट अ मिनट, नॉट विजिबल, लेट्स सी, ये a minus b whole square ये तो visible है, a minus b whole square is equal to 32ab, we are having a minus b is equal to root 32 times root ab, हो गया क्लियर। तो a minus b की वैल्यू हमें पता चल गई, a plus b की वैल्यू हमें पता है, a plus b कितना है is equal to 6 root ab, है ना, ये हमें पता है। दो इक्वेशंस हैं, इन टू वेरिएबल्स a एंड b है, हम कैंसिल आउट कर देंगे, क्या मिल गया हमें 2a इज इक्वल टू रूट 32 माइनस 6ab। रूट 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? रूट 32 इज व्हाट 4a, रूट 32 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो 4 रूट 2 हो गया, 4 रूट 2 ab माइनस 6 रूट ab, यही होगा ना, 4 रूट 2 ab माइनस 6 ab, है ना। 2a की वैल्यू ये हो गई। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो 2 रूट 2 एंड दिस इज रूट ab, है ना, 2 रूट 2 रूट ab माइनस 6 टाइम्स रूट ab। अब रूट ab कॉमन ले लो, रूट ab यहाँ ले लिया, अपना क्या आ गया 2 रूट 2 माइनस 6, 2 रूट 2 माइनस, सॉरी ये अपन ने 2 रूट 2 लिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया ना, तो यहाँ 3 आ गया ना, 2 से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, तो ये a हो गया, ये 2 रूट 2 हो गया, ये क्या हुआ 3ab, तो 2 रूट 2 माइनस 3 रूट ab, a की वैल्यू हो गई, ये वैल्यू ही a की। अब b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, पुट द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में a प्लस b में डाल दो, तो b क्या हो जाएगा 6 रूट ab माइनस a, लिख सकते हैं इसको b इज इक्वल टू 6 रूट ab, ये पहली इक्वेशन है, b से ले रहे हैं हम, b इज इक्वल टू व्हाट 6 रूट ab माइनस a, तो b इज इक्वल टू क्या होगा 6 रूट ab माइनस a की वैल्यू क्या है रूट ab टाइम्स 2 रूट 2 माइनस 3, अब कॉमन ले लो, तो b की वैल्यू हो गई b इज इक्वल टू रूट ab कॉमन, व्हाट वी विल हैव 6 माइनस 2 रूट 2 प्लस 3, हो गया ना, माइनस इंटू माइनस प्लस 3, 2 रूट 2 माइनस 3 आ रहा था ना इधर, क्लियर। वेट अ मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी अपन ने, 6 रूट ab माइनस a मींस माइनस रूट ab 2 रूट 2 माइनस 3, दिस इज सॉरी 3 प्लस 2 रूट 2, एक मिनट इधर इधर आ जाओ, ये अपन ने माइनस क्यों कर दिया, इधर तो प्लस होगा ना बेटा, जस्ट सी हमने यहाँ माइनस साइन नहीं किया, हमने तो दोनों को दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस साइन विल कम, दिस विल बी प्लस, क्लियर। तो ये अपना 6 रूट ab, तो यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3, ठीक है, ये देखो यहाँ प्लस होगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस 3, तो b की वैल्यू आ गई, इज इट विजिबल, है ना। b की वैल्यू अब देखो मैं यही कर देती हूँ, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, तो 3 माइनस 2 रूट 2, ये है आपकी a की वैल्यू,
और ये है आपकी b की वैल्यू, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द टर्म्स विल बी इक्वल टू a अपॉन b। अब यहाँ देख लो अपन a अपॉन b कितना हो जाएगा, a अपॉन b विल बी इक्वल टू a की वैल्यू है रूट ए बी टाइम्स 2√2 प्लस 3 और डिवाइडेड बाय b की वैल्यू आप देखो उधर से रूट ए बी 3 माइनस 2√2। क्लियर, ये है। अब रूट ए बी कैंसिल, सो a अपॉन b विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2√2। यही अपन को प्रूव करना था। द रेशियो ऑफ द टू टर्म्स इज गिवन एज, सी द बुक, given as 3 plus 2√2 upon 3 minus 2. Is that clear? It's an interesting and good question. Clear? Done everyone? And these type of questions you must have done in class 9th and 10th. Then come to question number 29. It is the same. Question number 29 is just same as question number 28. I'll explain you how. They have just given the general terms. General दे रखा है, तो आपको उससे निकालना है. I'll give you the hint, then you try it out. Question number 29 by yourself. Question number 29. What they are saying, let A and G be the AM and GM respectively between two positive numbers. है ना? A and G are the AM. A is equal to what? AM between two numbers. AM between two numbers. Let they be AB. है ना? And G is the GM between, geometric mean between two numbers. ठीक है? A is the AM between two numbers. तो AM क्या होता है? अगर दो नंबर्स A और B हैं तो A plus B by 2 क्या हो जाएगा? AM हो जाएगा. And GM क्या होगा? रूट AB. GM क्या होता है? Between two numbers A and B is what? Root AB. Now what they are saying, if A and G be the AM and GM between two positive numbers, prove that the numbers are, जो numbers हैं वो क्या हैं? इस तरीके से हैं. तो अब आप देख लो, ये मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है उससे. आपने इक्वेशन पढ़ी है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ी है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब अगर आप ध्यान दो तो ये क्या दे रहा है, अब इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0. हमें ए और जी की वैल्यू निकालनी है. तो ए और जी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से निकाल सकते हैं, अदरवाइज तो कोई मेथड है नहीं. तो हमने क्या किया, ये देखो, अब हमें सम ऑफ रूट्स पता है. अगर दो नंबर्स हैं a प्लस बी तो उनका सम क्या है, a प्लस बी. तो ये किसके बराबर हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स am और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, gm. तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इज व्हाट 2 times am into x plus gm is equal to 0. अब am की जगह a लिख दो, gm की जगह g लिख दो, ताकि इजी हो जाए आपके लिए ना. a और g ले रखा है उन्होंने. क्लियर? सो जस्ट सी एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस d इज इक्वल टू 0. तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, जस्ट सी हियर, x will be equal to what, minus a सॉरी एक्स स्क्वायर में माइनस बी प्लस माइनस क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. यही होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर एक्स स्क्वायर माइनस कोई भी आपकी इक्वेशन है तो उसका जनरल फॉर्म यही होता है सॉल्यूशन. सो x will be equal to what, just you have to put the value. b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b is what minus 2a and c is what g and a is what 1. Just put the values and you will get the answer. The roots of this equation will be what, the given form a plus minus root over of a plus g into a minus g. Clear? Try it out, otherwise you can ask me later on. Clear? Thank you class, it's time.